Hola amigos, welcome back to our channel The Language Buddy. I hope previous videos सबको समझ आ गए होंगे. So we are back with our new lesson, which is lesson 6. Okay, so we have in lesson 6 articles, articulos. Okay, so we know that we have three things in articles in English: the, a, and. But in Spanish, we have so many things. For the, we have four things: el, la, los, las. Okay, so we will learn which is next. So articles में English में तीन चीजें होती हैं: the, a, n, जो हम English में यूज करते हैं, जैसे the moon, the street. Okay, so अब हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे a और n. इंग्लिश में ए और एन होता है, बट स्पेनिश में ए और एन नहीं होता. स्पेनिश में उसको एन जैसा कोई वर्ड नहीं है. तो एन जो है वो वोवल्स के हिसाब से लगता है इंग्लिश में, बट स्पेनिश में जो है वो हम जेंडर के हिसाब से लगाते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे उनको यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो रूल्स जो हैं वो सेम रहेंगे. जैसे दा के रूल थे वैसे ही ए और एन के रहेंगे, और पूरी स्पेनिश में रूल्स सेम ही रहेंगे. जैसे हिंदी में हमने जेंडर्स डिसाइड कर रखे हैं. जैसे खिड़की है वो फेमिनिन है, फेमिनिन ही रहेगी. खिड़की खुली है तो वो क्या हो गई, फेमिनिन हो गई. खुली है, खुला नहीं है. ठीक है. और जैसे पंखा हो गया, पंखा चल रहा है तो वो मस्कुलिन में आता है. तो जैसे हिंदी में ये रूल्स डिसाइडेड हैं ऑलरेडी, तो स्पेनिश में भी जो हैं जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, एक फेमिनिन में और एक मस्कुलिन में. तो जो फेमिनिन वाले हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे, और जो मस्कुलिन वाले हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे, वो हम देखेंगे. दा हमको पता चल गया. ए और एन के भी सेम रूल है. तो देखते हैं. फेमिनिन में हम ऊना और ऊनास यूज करेंगे आ के लिए. जैसे दिस इज अ चेयर, अ चेयर, तो क्या हो गया, ऊना सिया, ऊना सिया. ठीक है. मस्कुलिन का एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हम बोल रहे हैं अ बुक, तो अ बुक, आ की जगह हम क्या लगाएंगे, उन लिब्रो. लिब्रो मीन्स बुक, सो उन लिब्रो. अगर बहुत सारी हैं बुक्स तो हम बोलेंगे unos libros. ठीक है. Okay, so we have now a and n. We don't have n in according to Spanish. We have four things for a. Okay, for feminine we have una, unas, with words which ends with a, sion, sion, dad, tad, tud. So if a object is ending with a, means a, sion, sion, dad, tad, tud, so we will put una or unas for a. Suppose I'm saying this is a chair, so I will say a chair. Chair is a sia, so it's end with a, so I will use feminino. So I will say una sia, una sia. Una for feminine, because word is ending with a, so it will be feminine, so we will use una sia. Okay. For masculino, if I'm saying this is a book, so a book is masculino. How? Because we say libro in Spanish. So libro, libro is ending with o, so we will use un libro, a book. Okay. So here we have some examples. For femenino, unas casas, una oficina, unas montanas. Okay, so we can see if the object is plural, we will plural this one also, unas. It will not una. If there is casa, so we will use una casa. If it's plural casas, so we will say unas casas. Same with masculino. If it's singular lapis, so we will use unos bolígrafos. Now it's plural, bolígrafos. So we will say unos bolígrafos means pens. Pens हो गया bolígrafos. Okay, so we have exceptionals also. So una calle.
una calle significa street. So it's singular, so we will say una. If it will be plural, so we will use unas. Una fuente. Fuente means fountain. So it's singular, so we will say una fuente. Now with masculino, un hospital, un hotel, un estudiante. Now you can guess what it is. Un hospital, a hospital, a hotel, a student. Okay, so हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फेमिनिन के और मस्कुलिन के, कैसे हमें यूज करना है अगर सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा तो। फर्स्ट पे हमारे पास है कासास। तो कासास क्या है? प्लूरल फॉर्म है फेमिनिन की, ए पे एंड हो रहा है तो ये फेमिनिन है। उनास कासास, हाउसेस, उना ऑफिसिना, आ ऑफिस। ओके, मस्कुलिन में भी देख लेते हैं। उन लापिस मीन्स अ पेंसिल। अगर ज्यादा पेन्स होंगे हमारे पास तो उनोस बोलीग्राफोस। बोलीग्राफोस मीन्स पेन, बोलीग्राफो मीन्स पेन, बोलीग्राफोस मीन्स पेन्स। ओके, एक्सेप्शनल भी हैं, उना काइए, उना फुएंटे। ये ई पे एंड हो रहे हैं बट ये किस में आते हैं? फेमिनिन में। और इनको गेस नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें इनको याद करना पड़ेगा। जैसे उन हॉस्पिटल, उन होटल, उन एस्टुडियांते। नेक्स्ट, ओके, हमें द, ए और एन ये समझ आ गया अच्छे से। रूल क्योंकि सब में सेम रहेंगे, फेमिनिन वाले वर्ड्स फेमिनिन ही रहेंगे, मस्कुलिन वाले मस्कुलिन ही रहेंगे, उनको चेंज हम नहीं कर सकते। अब हमारे पास है न्यू चीज जिसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या है। जेंडर हर चीज में रहेगा, हर चीज में हमें जेंडर का ध्यान रखना है, सिंगुलर का ध्यान रखना है और प्लूरल का ध्यान रखना है। ओके, फॉर फेमिनिन, फॉर मस्कुलिन, फेमिनिनो, मास्कुलिनो, सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास एक चीज रखी है, ठीक है, अब मुझे उसको बताना है स्पेनिश में। जैसे मैं बोल रही हूँ यह एक पेन है, मेरे पास रखा है पेन, मैं किसी को बता रही हूँ कि यह एक पेन है, तो मैं कैसे बोलूंगी? पेन क्या है? सबसे पहले देखेंगे हम पेन क्या है, मस्कुलिन है या फेमिनिन। तो पेन को क्या कहते हैं? बोलीग्राफो। तो वो क्या है? मास्कुलिनो। तो क्या हो गया? बोलीग्राफो। सो यह को क्या कहेंगे? हमें आ पेन तक तो पता है, और वर्ब जो है वो हम आगे करेंगे, वो हमें नहीं पता है। तो यह को हम कहते हैं दिस, इंग्लिश में और स्पेनिश में एस्ता, फेमिनिन के लिए अगर वो सिंगुलर है। ठीक है, दिस एस्ते अगर वो मस्कुलिन है। तो हमारा पेन क्या है? मस्कुलिन। तो हम उसको लिखेंगे एस्ते, एस्ते एस उन बोलीग्राफो। ठीक है, अगर कोई चीज मेरे पास रखी है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि यह एक फोन है, ठीक है, तो मैं उसके लिए, हम पहले उसको देखेंगे वो फेमिनिन है या मस्कुलिन, फिर हम उसको देखेंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो दिस को कहते हैं एस्ता, और दिस को, मस्कुलिन वाले दिस को कहते हैं एस्ते। Okay, so this is the new topic. We have already seen the, a, and the rule will be same for every words. Every word will have gender. It will be feminino or masculino. So now this is the new topic, demonstrative pronouns. So here we have this. In English we have only this and that, these and those. But in Spanish we have two this. One is for feminine and second is for masculine. So this one is for feminine, esta, and this one is for masculine, este. Second is these, two these. One is for feminine, second is for masculino. ओके, तो हमने ये वाले दिस पढ़ लिए, अब हम दीज बोल रहे हैं। अब मेरे पास बहुत सारी चीजें रखी हैं, मैं बोल रही हूँ यह पेन्स मेरे हैं, तो यह जो है बहुत सारे, यह हैं बहुत सारे पेन्स हैं। तो सबसे पहले हम जब सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हम पहले उसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वो पूरा सेंटेंस प्लूरल में ही चेंज होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ यह मेरे पेन हैं, तो दीज आर माई पेन्स। ठीक है,
इन स्पेनिश, स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? एस्टोस, सॉन, मीस, पोलीग्राफोस। क्यों एस्टोस क्यों यूज करा हमने? क्योंकि पेन जो है वो मास्कुलिनो है और मैं प्लूरल में बात कर रही हूँ, तो मैंने एस्टोस यूज करा है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जब हम करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी ये चीजें।